لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو آج اس کی آ رہی اس کی سمجھ میں آ رہی عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس اور ہماری جو والدہ کا انتقال ہو گیا ہے جو نمک کے فراد والی گلی میں رہتے تھے مٹی صبح 11 بجے بغائی کا برسہ بن جائے اس لیے تارپور والے گلیاں پڑھے اور چور والے اور پلٹوں کی بہن دونوں اور ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے جو نمک کے فراد والی گلی رہتی تھی مٹی صبح 11 بجے بغائی کا برسہ بن جائے گی لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں یا خدا رکھ میری تو یا خدا رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں تو جو چاہے تو بن جائے قسمت تیرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت سب کو حاجی بنا دے تو مولا سب کو حاجی بنا دے تو مولا بس یہی التجا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں السلام علیکم تلاوت کلام مجید حمد باری تعالیٰ کے بعد اب ہم تقریری سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ طالب علم ہیں جن کا عنوان ہے معاشرے کی تباہی کے اسباب موصوف سے التماس ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم شيئا صدر اجلاس حاضرین جلسات اور میرے دینی و ملی بھائی اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے
जिस मौजू को लेकर आया हूँ, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, वो है मुआशरे की तबाही के असबाब। आज हालात ये है कि ना सिर्फ एक बुराई हमको गवारा हो चुकी है, बल्कि हम बुराई का इजहार करते हुए अपनी तरफ बुराई को मंसूब करते हुए कोई हया महसूस नहीं करते। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोग हर रोज अखबार के अंदर वो किस्से पढ़ते हैं, वो कहानियाँ पढ़ते हैं। मुसलमान मर्द भी, मुसलमान औरतें भी, हम भी, हमारी माएँ भी, हमारे जवान बहनें भी ऐसी खबरें पढ़ती है, ऐसी खबरें उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती है जिनका जिक्र कभी मर्दों के सामने भी नहीं किया जाता। और अगर कोई ऐसी बात का इजहार भी करना चाहता तो उसकी पेशानी पसीने से तरबतर हो जाती, पसीने से डूब जाती, और बात उनको इशारों और किराए में करता है, कोई हया महसूस नहीं करता और बुराई को फैलाते रहते हैं। मोहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ गुनाह की मज़म्मत की है, वहाँ गुनाह का तज़किरा करने वालों के लिए भी बड़ी मज़म्मत की है। फरमाया इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिल फ़ाहिशा, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिल फ़ाहिशा फयतमअ الذين في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کہ لوگوں میں بات ایسے ہے جو اپنے کو اپنے سے نہیں مانتا فلا کہ اے مسلمان کے بیویوں تم گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی پردے کا استعمال کرتے رہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے پردہ کر کے نکلے اور گھر سے جب بھی باہر نکلے خوشبو استعمال نہ کرے. حتیٰ کہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا مَرَضٌ. مجھے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے تو اس کے خوشبو کے سہارے کچھ آوارہ مزاج لوگ اس کے جسم کے بارے میں گفتگو نہ کرنے لگے اور اس کے جسم کے بارے میں سوچنے نہ لگے. اور آج ہمارے فرقہ اس طرح اس گناہ میں مبعوث ہو چکے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمان کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محمد افضل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان حقوق الوالدین پر روشنی ڈالیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. سامعین کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے بیٹا میز ریڈی میں لے گا کیمرہ میز منٹے. سامعین کرام، آج ہم اور آپ اپنے معاشرے سے اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں. سامعین کرام، سب سے پہلے آج ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے زمین آسمان کے برابر گناہ کیا اور وہ شخص اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات میں کبھی شرک نہیں کیا ہوتا ہے. اور سامعین کرام، آج اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو آئیے دیکھیے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر والدین کا کیا مقام بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین اس شخص کو جس نے زمین آسمان کے برابر گناہ کیا تھا اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہیں کیا. اور اللہ رب العالمین جس جگہ قرآن کے اندر
अपनी तौहीद को बयान करता है, उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ उसने सलूक को बयान किया। आइए जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क्या लोगों, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है कि तुम अपने रब के सिवा किसी और की इबादत न करना, तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर अपनी तौहीद के बाद किसी के साथ उसने सलूक को बयान किया तो वालिदैन के मकाम को बयान किया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। मगर अफसोस कि आज हमारे माशरे के अंदर आज हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, आज हम अपने उन वालिदैन की नाफरमानी करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्कत से हमें पैदा किया, जिन्होंने इतनी मेहनत मशक्कत से हमारी परवरिश की। अगर हम बीमार होते थे तो हमें हमारी देखभाल किया करते थे और खुद भूखा रहकर हमें खाना खिलाया करते थे, लेकिन आज हम इन सब बातों को भुलाकर अपने वालिदैन की नाफरमानी किया करते हैं। सामने किराम, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह पर टेक लगा के बैठे होते हैं और कहते हैं ला उनब्बिउकुम बिअक्बरिल कबाइर, क्या है मेरे साथियों मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाहों के बारे में बता दूं। तो साहबियों ने कहा कालू बना रसूलुल्लाह, क्यों नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल इशराक बिल्लाह और हुकूकुल वालिदैन, कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करना और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। मगर अफसोस कि आज हम अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करते हैं, आज हम अपनी वालिदैन के साथ ज़बान दराज़ी करते हैं, आज अपने वालिदैन की बातों को नहीं मानते। लेकिन अगर हम इस्लाम के अंदर को देखें, इस्लाम को देखें, इस्लाम में क्या मुकाम है वालिदैन का। इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जगह कुरान के अंदर अपनी तौहीद के बारे में बयान किया, फौरन बाद उसने सलूक बयान किया तो अपने माँ बाप पर बयान किया। लेकिन सामने किराम, आज हम में से कुछ शख्स ये भी सोचते हैं कि आज अगर हम इस जगह पर बैठे हुए हैं, अगर हमारी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी हुई है तो वो मेरी बदौलत है। अरे नहीं, अगर तुम्हें किसी ने बोलना सिखाया तो तुम्हारे बाप ने बोलना सिखाया, अगर तुम्हें चलना सिखाया तो तुम्हारे बाप ने चलना सिखाया, तुम्हें सही से रहना सिखाया तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना सिखाया। आज तुम अपने उस बात पर ज़बान दराज़ी करते हो जिसने तुम्हें चलना सिखाया। अगर तुम आज इस मुकाम पर बैठे हो फिर तुम्हारे माँ बाप की देन है। लेकिन सामने किराम, आज हम अपने माँ बाप की उसने सलूक भुला कर बैठे हुए, आज हम अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं। लेकिन सामने किराम, अगर हम इस्लाम के अंदर थोड़ी सी घुसने की कोशिश करें, इस कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम में वालिदैन का क्या कानून होता है। सामने किराम, मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को वालिदैन के साथ उसमें सलूक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि में रहती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूंगा मेरी सस्ते में रहती है। अभी वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से आप हज़रात तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब आपके सामने दारुल उलूम मोहम्मदिया सल्फिया के दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद जीशान को दावत देता हूँ, जो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने उन्वान को उधार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है वो ज़ुबान है। वो दुगना पसंद करता है। देखिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि जब मुझे मिराज कराई गई तो मैंने क्या देखा, जहन्नम में एक बुढ़िया जल रही है, जहन्नम में एक बुढ़िया जल रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, ये बुढ़िया जो जहन्नम के अंदर जल रही है वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? काफी एक बिल्ली का मामला है। क्या हुआ, क्या था? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हुआ ये था कि इसने किचन में या किसी जगह पर एक कटोरे में दूध भर के रख दिया था और बिल्ली आई, दूध पी गई, हजम कर गई। तो जब इस बुढ़िया ने आकर के देखा दूध मेरा सारा खत्म हो गया तो गुस्सा निकला और गुस्सा के मारे उसने क्या किया, उस बिल्ली को
कमरे के अंदर बंद कर दिया। वलन तुतिमा, कमरे में बंद करने के बाद ना तो उसे खाना खिलाया, वलन तस्बिहा, ना उसे पानी पिलाया, वलन तता, और ना ही उसे कमरे से आजाद किया कि जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं उस कीड़े मकोड़ों के खा करके अपना पेट भर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वजह है कि ये बिल्ली इसी कमरे में तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। ये बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। इसी बेरहमी की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बुरी औरत को जहन्नम के अंदर डाल दिया। बेरहमी की बिना पर एक बुढ़िया जहन्नम के अंदर चली गई और पारहमी की बिना पर कुत्ते को पानी पिलाने की बिना पर एक गुनहगार शख्स जन्नत के मसाके से हो गया। जरा सोचिए, जब इस्लाम इतनी सारी रहनुमाई को इकट्ठा किए हुए हैं तो भला कैसे हो सकता है कि वो दहशतगर्दी की तालीम आए? ये कैसे हो सकता है कि मासूम बच्चों की जहां जाने जा रही हो और लोग ये कह रहे हो कि इस्लाम फीस की इजाजत देता है, इस्लाम दहशतगर्दी से ताल्लुक रखता है। जो इस्लाम कुत्ते पर इतना रहम करे, जो इस्लाम बिल्ली पर इतना रहम करे, अरे कुत्ता छोड़ो, बिल्ली छोड़ो, चिड़िया के साथ रहेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा इनतलिकू बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, जाओ अल्लाह के नाम से जंग करने और मेरी मिल्लत पर जाओ जंग करने। लेकिन सुन लो, मैं तुम्हें कुछ ज़वाबित और कवानीन बता दे रहा हूं, कुछ ज़ाब्ते और कुछ कानून बता दे रहा हूं। जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दोम हुई, कितने बच्चे मारे गए, कितने बूढ़ों को कत्ल किया गया, कितने नौजवान कत्ल किए गए और कैसे उनकी लाशें रोड पर बिछी हुई थी। जंगे अजीम अव्वल हुई, जंगे अजीम दोम हुई, कोई कानून जवाब नहीं। लेकिन अल्लाह के भी क्या फरमा रहे हैं, इंतलिकू बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ला तक़तुलू शैखन फ़ानियन, किसी बूढ़े को कत्ल मत करना, वला तिफ़लन, किसी बच्चे को कत्ल मत करना, वला सगीरन, किसी छोटे बच्चे को भी कत्ल मत करना, वला इमरातन, किसी औरत को भी कत्ल मत करना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंग का आलम ऐसा रहता है कि कानून का ख्याल रखते हुए अगर इंसान जंग करे तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन साहब की जमात इस कानून जवाबित को अपने दिल में रखते हुए, नबी के फरमान को अपने दिमाग में रखते हुए, इसका एतबार करते हुए ना तो बच्चों को कत्ल किया, ना तो बूढ़ों को कत्ल किया, ना तो औरत को कत्ल किया, ना तो किसी जवान को कत्ल किया। अगर कत्ल किया तो दुश्मनों ने इस्लाम को कत्ल किया। हालांकि बच्चे भी दुश्मनों ने इस्लाम थे, हालांकि औरतें भी दुश्मनों ने इस्लाम थी, हालांकि वो छोटे छोटे वो नौजवान बच्चे भी दुश्मनों ने इस्लाम थे, लेकिन उनको कत्ल करने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। ये है दीन इस्लाम। तो जरा बताइए, जो नबी जो दीन इस्लाम ये तालीम दे तो कैसे कर सकता है, वो कैसे ये तालीम दे सकता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया जाए। जिस मदर इस्लाम की तालीम दे कि इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, और दुनिया में बसने वालों तुम लोगों पर रहम करो, जो आसमान पर है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम पर रहम करेगा। जिस मदर इस्लाम की तालीम ये हो कि ला यरहमुन्ना मन ला यरहम, ला यरहमुन्ना मन ला यरहमुन्ना, जो किसी आदमी पर रहम नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर भी रहम नहीं करता। और ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब किताबुल तौहीद के अंदर है। बात चल रही है रहमत की, और
लाए किसके अंदर है? किताब तौहीद के अंदर। हालांकि लाना किसके अंदर चाहिए? किताब निकाह, जहां रहमत की बात चले उसी के अंदर लाना चाहिए था, लेकिन इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताब तौहीद के अंदर लाया। क्या वजह? वजह यह है कि रहम का ताल्लुक दिल से होता है, रहम का ताल्लुक दिल से होता है और तौहीद का ताल्लुक दिल से होता है। तो जिसके अंदर तौहीद भरी होगी उतना ही उसके अंदर रहम भरा हुआ, और अगर तौहीद नहीं है तो उसके अंदर रहमत की कमी। तो ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम की तालीम कि जो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी कत्ल नहीं किया, किसी के ऊपर भी तलवार नहीं उठाई। अगर वाकई में दीन इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता और ये तुम इल्जाम लगाते हो कि इस्लाम दहशतगर्दी से फैला, एक हदीस बयान करके मैं बात खत्म कर दूंगा इसी के ज़िम्मे में कि जो ये दावा करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और उसका रहम का कोई ताल्लुक ही नहीं, तो जरा गौर करिए कि इस्लाम वाकई में लोग पर रहम दिली की तालीम देता है। देखिए वो अब्दुल्ला बिन वलीद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा उसने सलूक किया। इंतकाल हो गया अब्दुल्ला बिन उबई का, और ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जिसने उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर जिना की तहमत लगाई थी। ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जो रईस मुनाफिकीन है, ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जिसकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात नहीं, बल्कि 40 रात तक के परेशान रहे, और नौबत यहाँ तक के आ गई थी कि आप तलाक देने वाले थे। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से आपने माना कि अल्लाह के नबी थोड़ा संजीदगी से मतलब गौर करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की बात को माना, और हजरत अली ने यह भी कहा कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से कोई सूरत नाज़िल कर दे, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पाक दामनी का ऐलान कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अब्दुल्ला बिन उबई की लाश के सामने है, और आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा है अब्दुल्ला क्या कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अच्छा होगा कि आप अपनी ये कमीज अब्दुल्ला मेरे बाप को दे उठाइए, बुखारी शरीफ किताब में देना है। कितना अच्छा होगा कि आप इस कमीज को मेरे बाप के ऊपर डाल दें, हो सकता है कि इस कमीज के जरिए मेरे बाप के दाम की कमी हो जाए, उतार दिया ले लो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अच्छा होगा कि आप मेरे बाप की नमाज जनाजा ही पढ़ा। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, हजरत उमर फारूक ने दामन पकड़ लिया। अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के नबी मैं आपको नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा, इसलिए कि ये वही शख्स है जिसने आपकी बेटी हजरत आयशा पर तहमत लगाई थी। अल्लाह के नबी ने उमर फारूक का हाथ छुआया और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन के जरिए मना कर दिया। कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गालिबन आप 71 मरतबा भी इस अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तब भी हम उसके माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जरा सोचिए कि आपकी बीवी हजरत आयशा पर तहमत लगाने वाला शख्स अब्दुल्ला बिन उबई, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दे रहे हैं और नमाज जनाजा भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अगर आज हमारी माँ बहन को कोई गलत नजर डाले
ایمانداری سے بتائیے گا. اگر آج ہماری ماں بہن کے اوپر کوئی نظر ڈالے تو زندگی بھر ہم اس کو تہمت کی نظر سے دیکھتے ہیں, زندگی بھر ان سے معاف کرنے کے تیار نہیں لیتے ہیں. تو ذرا سوچیے امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے والا شخص عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نماز پڑھائی اور اس کو معاف کر دیا. اتنا ہی نہیں, اٹھائیے بخاری شریف اور کتاب الجنائز حدیث نمبر 1270 اٹھائیے, قبر میں دفنا کیا گیا, صحابہ اکرام کو حکم دیا اس کو نکالو. حدیث نمبر 1270 کتاب الجنائز نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر رکھا ران کے اوپر, اور وہ پہلے کام دیا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا کام کرنے سے نہیں جائے گا. کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن عبداللہ بن ابی کے لعاب دہن سے ملایا, اپنا لعاب دہن عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا, پھر اس کے بعد کہا اس کو قبر میں ڈالو. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العالمین نے سچ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس تمام چیزوں سے ثابت ہو گیا اسلام ہی دین رحمت ہے. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح شرح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى في مقام آخر وما ربك بظلام للعبيد. معزز سامعین, آپ میں سے زیادہ تر لوگ شفاء حدیث شجاعت گنج کی سالانہ جلسے سے واقف ہیں. ہر سال 2 روزہ یہ جلسہ اصلاح اور تذکیر کو مد نظر رکھتے ہوئے منعقد کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ اس سال بھی یہ منعقد ہو چکا ہے. ہمارے اس جلسے کی صدارت کے لیے جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے نامزد ہونے کے باوجود ہمارے درمیان تشریف نہیں لا سکے. اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ آج کے اس جلسے کی صدارت ہمارے درمیان تشریف فرما جناب مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی فرمائیں گے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو تلاشے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا, ہرگز قبول نہیں کرے گا. بلکہ وہ جتنی بھی محنت مشقت جتن کر لے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے یہاں وہ ناکامی رہے گا. ناکام کا مطلب اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کیوں کہی گئی ہے اسلام کے تعلق سے کہ صرف اور صرف اسلام ہی کو قبول کرے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے
کوئی کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، کتنے بھی جتن کر لے، لیکن اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، دھیان ہی نہیں دے گا اس کے اوپر، اور اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین خود سے دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے جو مکمل طور پر جچا چلا ہے، اور اس نظام اور اس اصول اور اس ضابطے کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ضابطہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جچا چلا ہو، جس میں خطرہ نہ ہو، جو پرفیکٹ ہو، مکمل طور پر فطرت کے مطابق ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ رب اللہ الغیب ہے، وہ سب چیز جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے جچا چلا، بالکل ناپا ہوا، پرفیکٹ، جو ہر چیز کے موافق اور مطابق ہو، جس میں کہیں سے بھی کوئی ظلم کا پہلو نہ ہو، وہ ہم نے بنا کر کے دے دیا اسلام کی شکل میں۔ لہذا اب اگر اس شکل کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف تمہارا دماغ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے دنیا میں، اور دین تلاشنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرے، تو اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز میں کمی بیشی ہو جائے گی، جس میں ناانصافی ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو اللہ کو پسند کیسے آ سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف اور صرف قابل قبول ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اسلام ہی کی بات کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے، یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ 2 روزہ پروگرام اسی لیے منعقد ہوا ہے تاکہ اسی اسلام کی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ہمارے عام طور پہ سامعین مسلمان ہیں، اور اس اعتبار سے ہماری نگاہ میں یہ 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہے اصلاح اور ایک ہے تذکیر۔ اصلاح کا مطلب ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، خود ہمارے اندر۔ میں بہت زور دے کر یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج حالات تھوڑا بدل گئے ہیں۔ بدل کیا گئے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کی خامی صرف دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خامی نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے اصلاح کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں لیکن کامیابی نظر نہیں آتی۔ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہے۔ اصلاح کے لیے آسانی یہ ہے کہ آدمی اپنی خامی تلاش کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ تو بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ جن کو معلوم بھی نہیں رہتا کہ یہ خامی ہے کہ نہیں، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور تذکیر، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، تو ان کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے بوجھتے کاہے کے لیے ہلکے میں لے رہے ہیں، اس کو ہلکا نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ایمان کو جگانا مقصود ہے۔ تو اسی مقصد سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی اور کل کے پروگرام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ اصلاح اور تذکیر یہ ہمارا خاص مقصد ہے اس پروگرام کے پیچھے، اور ہم انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر جو خامیاں ہیں ہمارے اور آپ کے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت ساری باتیں جو ہم بھول جاتے ہیں یا جانتے بوجھتے بھولے رہتے ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایمان کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لیجیے اب ہم باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس اہم کام کے لیے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کے ایک شعبہ حفظ کے طالب علم محمد اسامہ سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پسند کا آغاز کریں۔
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم तिलावत कलाम पाक से बाकायदा बज़्म का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के दोनों मुक़र्रिर तशरीफ़ ला चुके हैं और हम वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए अब बिला ताख़ीर तक़रीरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस सिलसिले में मैं अदब व एहतराम के साथ आज की इस मजलिस की सदारत फरमा रहे जनाब मौलाना मोहम्मद हारून साहब सनाबी से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ। आपका मौजू है इस्लाम में हलाल और हराम। अल्हम्दुलिल्लाह वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم
لكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بڑے ہی محترم معزز حضرت مولانا رضا اللہ صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء عزیز، جماعت کے غیور، بزرگوں، جوانوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اسلام میں حلال و حرام، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اپنے وقت میں موضوع کی مکمل وضاحت کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھے وہ حق کہنے اور ساتھ ہی ساتھ پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ قرآن مجید نے حلال و حرام کے تعلق سے مختلف انداز بیان کیے۔ قرآن مجید کا ایک انداز تو یہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیات پڑھی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل یہ بیان فرمایا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انداز دوسرے طریقے سے اختیار کیا اور فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز یہ اختیار کیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کا تذکرہ کیا تو یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے اور بہت ساری آیات میں حلال و حرام کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں وہ اس کے علاوہ اور دیگر آیات اگر موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ حلال و حرام سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بات کی شروعات یہاں سے کر رہا ہوں۔ کسی کا غصب کیا ہوا مال اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، گاڑی ہے بنگلہ چاہیے، بنگلہ ہے فیکٹری چاہیے، سماج میں عزت پانے کے لیے دولت چاہیے، چاہے اس تعلق سے خاندان کا مارا جائے، ایک حق نہ دیا جائے، پڑوس کو دبایا جائے، اس کے لیے کتنا فساد کر لیا جائے، یہ ایک مجاز
पहली बात तो ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है, याद रखिएगा। इस्लाम ने माल के ताल्लुक से फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। इंसानों याद रखो, तुम्हारा अपना माल और तुम्हारी अपनी औलाद कहीं तुम्हें या अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल भी औलाद भी ये सब दुनिया की जीनत है, ये चमक दमक है दुनिया की सिर्फ। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। कुरान ने बयान किया माल भी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। तो इस ताल्लुक से हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये जरूर जानना है। और सिर्फ जानना नहीं है बल्कि अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को सिखाना। और ये तरीका नबी का तरीका। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं। हदीस में सहाबा इकराम का मजमा है और वहां आप गुराबा में सदक़ात का माल तक़सीम फरमा रहे हैं। देखिए अल्लाह के रसूल अपनी नस्ल को कैसे तैयार कर रहा है, बच्चों में कैसे इस्लाम उतार रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज का किस तरह नबी पाक को ख्याल रखता था कि अल्लाह के रसूल सदक़ात का माल तक़सीम फरमा रहे हैं गरीबों में। उसी में हदीस में आता है कि आपके नवासे हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनिए चलते चलते अभी पैरों से चलना नहीं जानते, निकल कर हज़रत फातिमा के हुजरा से नबी पाक की तरफ चले आ रहे हैं। घुटनिए चलते 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 सदक़ात की खजूर पड़ी थी, उधर चले गए और एक खजूर उठाई और मुंह में रख ली। ये नबी हज़रत हसन का मुकाम क्या है, हज़रत हुसैन का मुकाम क्या है, कभी जानने की कोशिश कीजिएगा। कितना प्यार था अल्लाह के रसूल को अपने नवासों से कि जुमे का खुतबा दे रहे हैं और सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नवासे रसूल गिर जाते हैं, अल्लाह के रसूल सीढ़ियों से उतर जाते हैं मिंबर रसूल से। कितना ख्याल था हज़रत हसन और हुसैन का। लेकिन हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल की जैसे निगाह पड़ी कि चंद खजूरें इस नवासे ने उठा ली है और एक खजूर मुंह में रख ली है, तो अल्लाह के रसूल ने सदक़ात का माल तक़सीम करना बंद कर दिया। तेजी से उठे, आप नवासे की तरफ भागे और आपने उसको उठाया और अपनी दो उंगलियां उसके हलक में डाल दी और वहां से खजूर खींच ली और फरमाया आले रसूल के लिए सदक़ात का माल हलाल नहीं हराम। ये तरीका था नबी का, ये सोच थी नबी की कि क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है, हमें कौन सी चीज इख्तियार करनी है और कौन सी चीज इख्तियार नहीं करनी है। हदीस में आता अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ मदीना की गलियों में जा रहे हैं। इसी सफर में अल्लाह के रसूल को एक खजूर पड़ी मिली, आपने उसे उठा लिया, साफ किया। ये मौका नहीं है वरना मैं आपको ये भी बताता कि आज खाने की महफिलों में हम कितना इसराफ कर रहे हैं, कितना ज़ाया कर रहे हैं, शादियों में किस तरह माल और खाना बर्बाद हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने खजूर उठाई और उठाने के बाद हदीस में आता साफ की और साफ करने के बाद अल्लाह के रसूल उस खजूर को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगे। कभी दफा कर अल्लाह के रसूल ने वो खजूर को मुंह की तरफ दी, वो हाथ खींच लिया और अपने एक साथी को आपने वो खजूर पेश कर दी कि तुम इसको खा लो। फरमाया मुझे ये खदशा लगा
कि कहीं ये खजूर सदका की ना हो। ये नबी है, ये रसूल है, ये पैगंबर है, ये हादी है, ये हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखला रहा, हलाल और हराम की तमीज हमें बता रहा। अब इसमें आता अल्लाह के रसूल बाजार में मदीना चले गए तो, और जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने दुकानों को चेक करना शुरू किया। आप चलते चलते गन्ना के ढेर पर पहुंच गए और जाने के बाद उसके पास रुक गए और रुकने के बाद उससे बातचीत करने लगे। उसी ने आपने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया और जैसे आपका हाथ निकला तो वो गीला था, भीगा हुआ था। आपने फरमाया ये गन्ना तुम्हारा ऊपर से सूखा हुआ है और नीचे मैंने हाथ दिया तो ये गीला निकल रहा है, ये क्या माजरा है, ये क्या बात है? वो कहने लगा कि बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गन्ना भीग गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बारिश तो आसमान से होती है, बारिश तो ऊपर से होती है। अगर बारिश की वजह थी तो ऊपर का गन्ना भीगा होना चाहिए था। तब आपने हदीस में हमें इस्लाम का उसूल सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। मन गश्श फलैस मिन्ना, जो धोखा करेगा, जो फरेब करेगा, जो किसी तरह से बिजनेस की अय्यारी करेगा, मक्कारी करेगा, आपने फरमाया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये दीन और दीन में हलाल और हराम की तमीज सिखाई जा रही है नबी की तरफ से। मेरे भाइयों, इस ताल्लुक से मुसलमान दीन की बात सीखने की कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका माल घट जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं कि मीरास का माल न उन्होंने तकसीम किया, न उनके बाप ने तकसीम किया, न उनके दादा ने तकसीम किया। अगर तकसीम की बात आएगी तो वो कोठी हिस्सों में बढ़ जाएगी, टुकड़ों में बढ़ जाएगी, वो महल महले रह पाएगा। इसलिए हम इस चैप्टर को पसंद नहीं करते। हम हलाल और हराम की तमीज के ताल्लुक से बहुत गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि अल्लाह के रसूल की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते एक आदमी अल्लाह के सामने आता है, हाथ दराज कर लेता है और अपने हाथ उठाने के बाद अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है, अल्लाह को अपनी सुनाता है, अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजा रखता है। आप फरमाते हैं लेकिन हाल उसका यह है, जो पीता है वो भी हराम का है, जो खाता वो भी हराम का है, जो पहनता वो भी हराम का। तो फरमाया उसकी दुआ कैसे कबूल होती, दुआ उसकी कैसे कबूल होती? मेरे भाइयों, आज नमाज भी है, क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, जिक्र भी है, तस्बीह भी है, सदक़ात भी है, खैरात भी है, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, अपाहिजों के साथ, बीमारों के साथ अच्छा सुलूक भी है। लेकिन परेशानी ये है कि हमारा अपना माल क्या हलाल का है कि नहीं, ये जानना, ये समझना, इसकी तरफ मुकम्मल अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी इख्तियार करना जरूरी है। सहाबा-ए-किराम इसका खास ख्याल करते हैं। हदीस में आता है, रिवायत में आता है कि एक गुलाम खाने की चीज लेकर आया और लाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको लिया और खा लिया। जब खा लिया तो उसके बाद उसने कहा, आपने मुझसे सवाल नहीं किया, आपने मुझसे कुछ पूछताछ नहीं की, क्या माजरा है, क्या वजह है? कहा, जब मैं मुसलमान नहीं था, जब मैंने इस्लाम इख्तियार नहीं किया था, तो उस जमाने में कहानत का काम करता था। ये जो आज जोशी का लोग काम करते हैं, नुजूमी का काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ के लकीरें दिखाने जाते हैं, बता दो मेरे कितने बच्चे होंगे, मेरी शादी कब होगी, मेरा निकाह कब होगा, मैं कब मरूंगा, माल कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सब कहानत की काम, ये सब
का काम करता था। और उसी जमाने में मैंने एक आदमी को एक बात बता दी थी, उससे फिर मुलाकात नहीं हुई। जमाने के बाद आज उससे मुलाकात हुई। तो उसने ये खाने की चीजें थी, उसमें से कुछ मैंने आपको भी पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फौरन अपनी दोनों उंगलियां अपने हलक में डाल दी और तब तक मुसलसल डाल कर उल्टी और तय करते रहे जब तक उन्हें यकीन न हो गया कि उनके पेट में खाई हुई चीज में से कोई हिस्सा नहीं रहा। ये पाकिस्तानी की सहाबा की, ये हलाल और हराम के ताल्लुक से तमीज की सहाबा इकराम की, ये उनकी सोचों के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से मेरे भाइयों सोच आज यही बनाने की जरूरत है, इसी सोच को पैदा करने की जरूरत है, इसी सोच को मुसलमानों अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। फिर हमारे यहाँ सिद्दीक पैदा होंगे, फारूक पैदा होंगे, उस्मान गनी पैदा होंगे, अली मुर्तजा पैदा होंगे, हसन और हुसैन पैदा होंगे, यहाँ बड़े बड़े जियाने आएंगे मेरे भाई। गुलाम लोग कहते हैं ये गरीबी जो है, ये मुफलिसी जो है, ये मुहताजी जो है, ये दरअसल हमें हलाल और हराम की तमीज नहीं होने देती। ये सब कुरान है मेरे भाइयों, ये सब मकारियां है मेरे भाइयों। एक माली, एक गुलाम बाप के अंदर है और उसके अंदर नौकरी का काम करता है, रखवाली का काम करता है। बाप के अंदर एक दिन मालिक आ गए, मुबारक नाम आपने अगर नहीं सुना तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक का नाम बड़ा मशहूर है, बड़ी बुखारी शरीफ में उनकी रिवायात हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के वालिद मुबारक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, फकीर आदमी, नौकर, एक गुलाम, एक मालिक का काम करने वाला ये आदमी। मालिक आ गया और अपने दोस्तों के साथ आया और आने के बाद कहा मुबारक खास मेहमान है, मेरे खास दोस्त हैं, इसलिए ताजा और उम्दा और मीठे फल लेकर। सुनने की चीज है मेरे भाई हुई। मालिक ने कहा मेरे खास दोस्त हैं, इसलिए ताजा उम्दा मीठे फल लेकर आओ। मुबारक आगे भागे गए, इस डाल से, इस पेड़ से, यहां से, वहां से जो उन्हें उम्दा लगे उन्होंने सजाया प्लेट में, धोया, उनको साफ करने के बाद मालिक के सामने दस्तरखान पर रख दिया। इत्तेफाक देखिए, मालिक ने पहला ही फल उठाया और जैसे उठाया वो खट्टा था, गुस्सा हो गया मालिक गुस्सा हो गया। लेकिन मुबारक बहुत नेक थे, इसलिए गुस्सा पी गया और कहा मुबारक खास मेहमान हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं, मेरे अपने यार हैं, मेरे अपने हमसबक हैं, जरा इसकी तमीज को कर लो, जाओ दोबारा अच्छे उम्दा मीठे ताजे फल लाओ। ये मुबारक फिर गए और बात की एक एक डाली, एक एक टहनी, एक एक पेड़ को गौर से देख कर फिर फल चुन लिए और चुनने के बाद, होने के बाद, साफ करने के बाद इस मुबारक ने फिर थाली सजा दी अपने मालिक के सामने। मालिक ने फल उठाया, सुए इत्तेफाक कि फिर वो फल खट्टा था। अब की बार मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया, गुस्सा हो गया और इसी गुस्से ने कहा तो शाम मुसलसल हो गई यहाँ काम करते करते। मुझे ये तमीज न हो सकी कि कौन सा फल मीठा है, किस पेड़ के फल अच्छे हैं, किसके उम्दा है, किसके शीरी है। मुबारक ने आपकी से कहा मालिक सच कहा आपने 10 साल हो गए, लेकिन आपको ये मालूम कुछ ना। बच्ची उठती है, कहती है माँ रात का सन्नाटा है, तारीखी है, क्यों उठा रही हो?
کہ اس لیے اٹھا رہی ہو، اٹھ جا اور جانوروں کا دودھ نکال لے۔ پر رات میں کہا تو نے سنا نہیں امیر المومنین کا فیصلہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا اعلان کر دیا دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، اس لیے رات میں اٹھ جا، دودھ دو دے، اس میں پانی ملا دے تاکہ گراہکوں کو پورا کیا جا سکے۔ بچی نے کہا امی یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ کہا رات کی تنہائی میں امیر کہاں ہے؟ امیر المومنین کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ تو کہا امی بادشاہ وقت امیر المومنین نہیں ہے، عمر نہیں ہے، لیکن عمر کا وقت موجود ہے، عمر کا وقت موجود ہے۔ میں آپ سے میرے بھائیوں یہ صرف پوچھ کر آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس بچی کے اندر جو ڈر پیدا ہوا ہے، جو اللہ کا تصور پیدا ہوا ہے، یہ خشیت الہی جو اس کے دل میں آئی ہے، یہ کس لیے؟ وہ جانتی تھی کہ پانی اگر ملایا جائے گا تو حرام نہیں، حلال نہیں۔ یہ تمیز، یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دودھ جائز ہو جائے گا یا ناجائز ہو جائے گا، یہ بچیوں کو سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی، اسلام کے چیپٹر ان کو کلیئر تھے، لیکن آج میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہیں۔ اس تعلق سے ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بوتے لگانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جب حلال و حرام کی تمیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ واقعات پیدا ہوتے ہیں، وہ بخاری مسلم کے واقعات جو لوگ سناتے ہیں خطبوں میں کہ 3 آدمی چلے جا رہے تھے اور چلتے چلتے بارش ہو گئی، موسلادھار بارش، اور اسی بارش کے اندر ہوا یہ کہ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غفا میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے۔ جیسے غار میں گئے اوپر سے ایک چٹان کھسکی اور غار کے منہ پر آ کر لگ گئی۔ تفصیلی واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چیز اشارہ کر کے وہاں سے کہوں گا، جب غار کا منہ بند ہو گیا تو تینوں لوگوں نے تنہائی میں اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور اسی تنہائی میں ایک دوسرے آدمی نے جو فریاد اپنے اللہ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے کام کرایا، مزدوری طے کر لی، اور کام کرنے کے بعد جب مزدوری دینے کی بات آئی تو جو مزدوری طے تھی اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں آج ہم مالدار ہیں، فیکٹری والے ہیں، کارخانے والے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، لیکن غریبوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ آج ہمارے حاجی اور نمازیوں کا کیا حال ہے؟ اس تعلق سے حلال و حرام کی تمیز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس نے کہا نہ، مزدور نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، اے اللہ میں دیتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کام زیادہ کیا ہے، اس لیے مجھے زیادہ مزدوری چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، جو طے ہوا ہے میں وہی مزدوری دوں گا۔ وہ مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، وہ مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ ایک زمانے کے پاس، ایک زمانے کے بعد وہ پلٹا، اور پلٹنے کے بعد میرے یہاں میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے بہت دیر کے بعد اس کو پہچان کو لیا، لیکن اس نے کہا کہ آج میں کسی بھی تعلق سے، کسی مزاج میں نہیں ہوں، میں بے انتہا پریشان ہوں، بے انتہا غریب ہو چکا ہوں، بے انتہا مفلس ہو چکا ہوں، میں آج دانے دانے سے ترس رہا ہوں، اپنے اولاد کو بھوکا چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے جو میری مزدوری تھی مجھے دے دے۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے، اس نے جیسے ہی مزدوری لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میرے دل نے بھی مجھے چیلنج کر دیا، میں ایمانداری پر آ گیا، اور میں نے کہا یہ حصہ جو بکریوں کا لیبر دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، میرے بچے، میری بیوی بھوکی ہے، میں پریشانی میں ہوں، میں مجبوری میں ہوں، میں دانے کی تلاش میں ہوں، میں غلے کی تلاش
मैं रिजल्ट की तलाश में हूँ। बहुत सोचने के बाद याद आया कि तुम्हारे पास मजदूरी है, वो लेने आया हूँ, दे दो। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो सारे लेबर बकरियां सब में रहने जा। और उसने राज खोल दिया। जब तू चला गया था, तो मैंने तेरी इस मजदूरी की रकम को अपनी बीवी का एक हिस्सा बना दिया और उसी हिस्से से ये सारे लेबर अल्लाह ताला ने दिए थे, ये सब तेरा ले जा। हलाल और हराम की तमीज आती है तो फिर किसी भी तरह से फराड, मक्कारी, अय्यारी, दगाबाजी, धोखाबाजी ये मोमिन नहीं करता। मोमिन की शान वही होती है जो इसने की और अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया तो उसका फायदा भी दुनिया में ले लिया। हदीस में आता वन खट चट्टान खट गई, रास्ता नजर आने लगा, दिखने लगा, उसे जिंदगी और मौत की जो कश्मकश में था उसमें उसे महसूस हुआ कि जिंदगी क्या होती है। हलाल और हराम की तमीज मेरे भाइयों जिंदगी में अगर रहेगी तो इंसान को ये एहसास रखना चाहिए, ये जिंदगी में याद रखना चाहिए, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने उसके मुकद्दर में कर दिया। कोई समझे कि बेईमानी से, हराम तरीकों से, नाजायज तरीकों से दौलत ज्यादा आ जाएगी तो ये सिर्फ उसकी सोच है, खाम ख्याली है, कहनी है, ये उसके दिमाग का नुक्स है, ऐब है। हज़रत अली फरमाते हैं, सुनिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफर में था और सफर से जब वापस आ रहा था मदीना की तरफ तो वापसी में सहरा से गुजर रहा था, नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त हुआ तो मैंने दाएं बाएं देखा, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, चलता गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी नजर आया कि आ रहा है मेरी तरफ, वो मेरे करीब आ गया। करीब आया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुसलमान नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, नमाज पढ़ूं इतनी देर, अगर तुम मेरा घोड़ा पकड़ लो तो ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए आसानी की बात हो जाएगी। उसने कहा कोई परेशानी नहीं, आप नमाज पढ़ो, मैं आपके घोड़े की हिफाजत करूंगा, तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा। ये नमाज पढ़ के और नमाज पढ़ ली, नमाज खत्म हो गई और जैसे हज़रत अली फरमाते मैंने सलाम फेर दिया, देखा कि घोड़ा तो वहीं खड़ा हुआ है लेकिन घोड़ा जिसे मैंने पकड़ाया था वो गायब। ये भी सुनने की चीज है, ये जो हराम के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे सूद से हो, ब्याज से हो, रिश्वत से हो, किसी भी तरह से अय्यारी और मक्कारी से हो, उनके लिए ये वक्त में सलाम है। हज़रत अली फरमाते सलाम फेरा तो मेरा घोड़ा वहीं खड़ा था लेकिन जिसे घोड़ा पकड़ाया था वो गायब था। अब मैं घोड़े के करीब आया तो मुझे पता चला कि मेरे घोड़े की जीप गायब है। वो आदमी जीप लेकर भाग गया। अब मैंने अपने घोड़े का कान पकड़ा और चल दिया। थोड़ी दूरी पर गया तो एक आदमी मिला, मैंने पूछा यहाँ कोई बाजार है जहां पर जीप मिल सकती है? तो उसने बताया यहाँ जाओ, ऐसे ऐसे रास्ते से एक दुकान आएगी, वहां जीप मिलती। फरमाते हैं मैं चलता गया और जाने के बाद उस दुकान पर पहुंच गया। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मेरी इंतहा हैरत की न रही कि मैं उस दुकानदार को देखता हूं, कभी अपने आंखें में झांकता हूं। आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत जुटाने के बाद मैंने कह ही दिया कि मैं सीट खरीदने आया था, लेकिन हैरत यह है कि ये सीट जो आपकी दुकान पर रखी हुई ये मेरी है। उसने कहा आपकी? हाँ, और पूरा वाकया बयान कर दिया। तो उसने भी सच्चाई से कहा अगर आप ऐसा कहते हो तो अभी 4 मिनट पहले एक आदमी आया और 2 दिरहम में ये मुझे बेचकर चला गया। अगर आप जानते हो कि आपकी है और जैसा कि आप कह रहे हो वाकई आपकी है तो आप सिर्फ मुझे 2 दिरहम दे दो, ये सीट ले जाओ। मैं कोई भी प्रॉफिट मुनाफा लेना नहीं चाहता। हज़रत अली फरमाते मैंने 2 दिरहम निकाले और उसको दे दिए और देने के बाद सीट ले ली। फरमाते अल्लाह की कसम, फरमाते अल्लाह की कसम
میں نے جب نیت باندھی تھی اس سے پہلے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں جانتا نہیں یہ کون ہے، یہ کس پریشانی میں ہے، یہ کہاں جانا ہے، اس کا کتنا نقصان ہوگا، لیکن دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کے بعد اسے 2 درہم دوں گا۔ فرمایا ملے تو اس کو 2 ہی درہم، لیکن مجھ سے لیتا تو حلال کے تھے، لیکن مجھ سے نہ لیے اور یہ انداز، یہ طریقہ اختیار کیا تو اپنے 2 درہم اس نے حرام کر لیے۔ تو حلال و حرام کی تمیز مسلمانوں کو ہمیں آنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فراڈ کریں گے، ہم کسی بھی طرح سے مکاریاں کریں گے، دھوکہ کریں گے، جھوٹ کا استعمال کریں گے تو مال بڑھ جائے گا۔ یہ صرف ذہن کی ابتدا ہے، یہ نقص ہے ہمارے ذہن کا، یہ عیب ہماری زندگی میں ہو چلا ہے۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا۔ یہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا عبداللہ ابن مبارک کا، یہ مبارک ایک نوکر آدمی تھے، لیکن انہی کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا کر پھر قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، واقعات کی طرف اور روایات کی طرف آپ کو لے جاؤں گا سیدھے سیدھے۔ مبارک کے پاس ایک باپ تھا اور یہ باپ مبارک نے 1 سے زیادہ شادیاں کی اور سب کے بچے ہوئے، لیکن جس سے عبداللہ ابن مبارک جو محدث سے پیدا ہوئے وہ اکیلے بچے تھے اپنی ماں کے۔ ماں کا اسراف بڑھتا گیا کہ فلاں بیٹے کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو کام بھی ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہنر بھی ہے۔ اس نے راضی کر لیا مبارک کو کہ یہ باپ عبداللہ کو دے دو۔ عبداللہ نے باپ لے لیا اور کئی سالوں تک ان کا قبضہ رہا، لیکن تاریخ میں لکھتی ہے کہ عبداللہ مبارک نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، دینی درسگاہ میں بھیج دیا، اسلام سیکھنے کے لیے بھیج دیا، قرآن و حدیث جاننے کے لیے بھیج دیا، اور حدیث پڑھتے گئے حدیث کا وہ واقعہ ان کے سامنے آ گیا۔ کون سا؟ کہ حضرت بشیر صحابی رسول، ان کے بھی ایک فرمانبردار بیٹا حضرت نعمان تھا، ان کی والدہ یعنی نعمان کی والدہ بشیر کی بیٹی نے بھی اسلام کیا، کرتے اپنے شوہر کو راضی کر لیا۔ یہ حصہ جو ہے یہ صرف نعمان کے نام کر دو، اور باپ راضی ہو گیا۔ نعمان کا باپ بشیر راضی ہو گئے، بیوی کی بات مان لی، کہا بات ایسے نہیں بنے گی، بلکہ اس پر اللہ کے رسول کی مہر لگاؤ، لے جاؤ بیٹے کو اور رسول اللہ کی دربار میں جا کر کہو کہ یہ ساری جو باپ ملکیت ہے میں نعمان کو دیتا۔ بشیر چلے گئے اپنے بچے کو لے کر، اور لے جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے وصیہ پیش کر دیا کہ ایسا ارادہ ہے اور یہ حصہ میں اپنے بیٹے نعمان کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دور کی اولاد ہے، فلاں بیٹا بھی ہے، فلاں بیٹا بھی ہے، فلاں بیٹا بھی ہے، ہاں کہ اتنا ان کو بھی دیا؟ کہ اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، بعض روایات میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ ہم پر اپنے رسول کو گواہ بنانے آیا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے یہ عبداللہ بن مبارک درسگاہ میں اپنے استاد سے حدیث بخاری کی سن رہے ہیں اور اٹھ گئے، بھاگ لیے، مجلس سے نکل لیے، درسگاہ سے بھاگتے اپنے گھر آ گئے، اور آنے کے بعد بھائیوں کو بلایا، اپنی بہنوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائیوں میری بہنوں مجھ سے ظلم ہو رہا، تو کیا ہوا؟ ارے ہمارا بھائی لائق بھائی، دیندار بھائی، دین سیکھنے گیا بھائی، یہ کیسی بات کر رہا؟ کیا کوئی پریشانی آ گئی مدرسہ میں؟ استاد سے کوئی بات ہو گئی؟ استاد کے سامنے کوئی گستاخی کر دی؟ نہیں، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے
میں اس پر عمل جب تک نہیں کروں گا سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ میں اگر یہ بات کہہ کے آگے بڑھوں، میرے بھائیوں، کیا لفظ اہل حدیث صرف آمین کا نام ہے؟ کیا صرف سینے پر نیت باندھنے کا نام ہے؟ کیا صرف ربدین کا نام ہے؟ چند مسائل میں آپس میں لوگوں کو پھڑا کر ہم آپس میں یہ محسوس کریں کہ نہیں صرف یہی دین ہے؟ دین کو سمجھو، وہ مسائل ہیں، سچے مسائل ہیں، صحیح مسائل ہیں، ان کی تکلیف ہونی چاہیے، ان کی اشاعت ہونی چاہیے، ان مسائل کو سامنے لانا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان مسائل کے بیچ میں ہماری زندگی پھنس جائے اور ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے۔ حدیث پر اگر ہمارا عمل ہے تو یہ حضرت عبداللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ نے فوراً بھائیوں سے کہا اپنا اپنا حصہ لے لو، تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، بہن تیرا حصہ بھی ہے، بہن تیرا بھی حصہ۔ سب نے کہا عبداللہ کیسی بات کر رہا، ہم تو آواز ہیں، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، ہمارے پاس مکان موجود ہے، ہمارے پاس باغات موجود ہے، ہمارے پاس کھیت موجود ہے، یہ تیرا حصہ ہے، تو لے لے۔ نہ، راضی کیا، مجبور کیا، بھائی مجبور ہو گئے اور جن کا جو حصہ تھا وہ دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں آخری بات، میرے بھائیوں اس تعلق سے یہ بات اپنی کان کھول دو کہ عبداللہ نے دے دیا، بھائیوں نے خوشی سے پھر لے لیا، اور جس کا مال تھا وہ اس مال پر قابض ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد عبداللہ کے ایک لڑکا پیدا ہوا، کوئی اولاد نہیں تھی، لڑکا پیدا ہوا، خاندان اکٹھا ہو گیا عقیقے کے موقع پر، اور جب سارا خاندان، سارا گھرانہ، سارے لوگ اکٹھا تھے، یہ بھائی اور بہن آگے آئے اور کہا عبداللہ پورے اپنی خوش دلی سے شریعت اسلامیہ کے مطابق جو حصہ جس کا بیٹھتا تھا تم نے دے دیا، لیکن ہمارا فیصلہ سن لے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، یہ اولاد، اس اولاد کی خوشی اور اس کی کیا ہم سے اس قدر خوشی ہے کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ تجھے نہیں، اس بچے کو ہم اپنا سارا مال دیا ہوا ہدیہ کرتے ہیں۔ سب نے واپس مال عبداللہ کا تھا، مال پر عبداللہ قابض تھے، حدیث سامنے آئی، جس کا حصہ کو اسے دے دیا، لیکن کچھ دن کے بعد مال پھر واپس آ گیا۔ اللہ کے ہاں میرے بھائیوں دینے کے راستے وہ ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے رزق دیتا ہے کہ تم گمان نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری عقل وہاں نہیں جا سکتی، تمہارے عقل گمان میں نہیں آ سکتا۔ لیکن حلال حرام میرے بھائی اپنی زندگی میں یہ شعور ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ، پھر جو میں نے خطبہ مسلمہ میں آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، ان کی تشریح آپ کے حوالے کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یتیم بچہ اپنے کھجوروں کے باغ میں گیا، اور جانے کے بعد حلال و حرام کا احساس کیا ہوتا ہے یہ سیکھو میرے بھائی۔ یہ یتیم بچہ اپنے باغ میں گیا اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بغل میں جو باغ ہے وہ بھی کھجوروں کا ہے، اس کے تلے ان کے خوشے اس کے باغ کی طرف جھک رہے ہیں، اور مالی سے معلوم کیا کہ یہ خوشے جو جھک رہے ہیں یہ تو ٹوٹ جاتے ہوں گے، ان کی کھجوریں تو گرتی ہوں گی، کہ ہاں اسی باغ میں گرتی ہیں۔ کیا کرتے ہو کہ جہاں اپنی کھجوریں سمیٹتے ہیں، ان کھجوروں کو سمیٹ کر بازار میں جاتی ہو، گر جاتی ہو۔ یہ کھجوریں پڑوسی کے باغ کی ہیں، پڑوسی کے پیڑ کی ہیں، میرے باغ میں گر جاتی ہے، میری کھجوروں کے ساتھ مل جاتی ہے، ایسی منڈی میں چلی جاتی ہے، فرمایا تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی تمیز تھی میرے بھائی۔ بلایا اور بلانے کے بعد کہا پہلی فرصت میں دیوار کر دو، ایک بھی کھجور میرے پڑوسی کی میرے باغ میں نہیں آنی چاہیے۔ آج تو بہانے تلاش کرتے ہیں، کتنے لوگ
सिंचाई करते थे। हदीस में आता दीवार शुरू हो गई, ये वाक़या सुनने का मिल रहा है। बुखारी शरीफ का ये वाक़या सुनो, इस हलाल और हराम की तमीज ने कौन कौन सी नेमतें मोमिनीन के मुकद्दर बना दी। हदीस में आता है दीवार शुरू हो गई और दीवार बनने लगी। पड़ोसी का एक पेड़ एक ऐसी जगह आकर अटक गया कि अगर इस यतीम के बाप में आता है तो दीवार सीधी भी होती है और दीवार बनाने का फायदा भी होता है, वरना फिर दीवार बनने के बाद भी बेकार हो जाएगी। इसने अपने पड़ोसी को बुलाया, सारा मसला उसको बताया, सारी कहानी उसके सामने रखी और रखने के बाद कहा ये पेड़ मुझे दे दो। इनकार कर दिया उसने, कहा अगर ऐसे नहीं तो कीमत दे दो इसकी। इनकार कर दिया, लेकिन इसको सुकून कहा था, इसको वो हलाल और हराम इसके जहन में सराय कर गया था। इसने ये पूरा कदम उठाया और अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल ये तस्वीर समझे कि मेरी खजूरें नहीं है, मेरे बाप की खजूरें नहीं है, मेरे बाप में आ जाती है, ये हलाल और हराम मुझे सता। अल्लाह के रसूल ने पड़ोसी को बुलाया और वही बात जो पड़ोसी ने कही थी अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि इसे पेड़ दे दो ताकि इसकी दीवार सीधी हो जाए। हलाल और हराम का जो अल्लाह ने इसको मलका दिया है उस ताल्लुक से इसका रहन साफ हो जाए। इनकार कर दिया उसने। जब इनकार किया तो अल्लाह के रसूल ने वही बात कही कीमतन दे दो, तो भी इनकार कर दिया। अब सुनने की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे की बात बयान करना और वो बात ये थी कि तुम इस यतीम बच्चे को ये पेड़ दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें जमानत देता हूं कि तुम्हें जन्नत का एक पेड़ दिया जाए। आप क्या सोच रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वैसे ही पड़ोसी का जवाब आया ना, नहीं। हदीस में आता जैसे नहीं का जवाब आया, एक सहाबी रसूल फौरन खड़े हो गए, उन्होंने सरासी दे दी। और सहाबी का नाम है, आपकी जानकारी के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया अल्लाह के रसूल ये तो बशारत जन्नत के एक पेड़ की सुनाई आपने, ये सिर्फ किसी पड़ोसी के लिए है, ये जो भी ये यतीम को पेड़ दिला दे उसके लिए ही बशारत है। आपने फरमाया जो भी इस यतीम को ये पेड़ दिला देगा उसको यही बशारत है। तो ये सहाबी खड़े के खड़े रह गए और पड़ोसी से कहा उस बाग वाले से, अरे मुझे जानते हो? कहा हज़रत अबू हुरैरा आपको कौन मदीना में नहीं जानता? कहा मेरा बाप जानते हो? कहा आपका बाप कौन नहीं जानता मदीना में सबसे उम्दा फल, सबसे अच्छी खजूरें आपके बाप की है। कहा बाप के बारे में जानते हो कि कितने पेड़ हैं? कहा ये मौका नहीं मिला, मैंने कभी आपके बाप के पेड़ नहीं गिने। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूं कि मेरे बाग में 600 पेड़ हैं और फरमाया मजीद जान लो मेरे बाग के बीच में मेरा 2 मंजिला मकान भी है। और सुन लो मदीना में मीठे पानी के चश्मे बहुत कम है, मेरे बाग के बीच में मेरा जो बाग है उसमें मीठे पानी का चश्मा भी मौजूद है। तो इस यतीम को ये पेड़ दे दो, मेरे 600 पेड़ ले लो, 2 मंजिला मकान दे दो, मीठे पानी का चश्मा दे दो। ये पड़ोसी बोला अल्लाह के रसूल सुन रहे हो दादा क्या क्या बोल रहे हैं? फरमाया सुनने की बात है, तुम मेरे रसूल को गवाह बना लो। और हदीस में था ये कहकर भाग लिए बच्चे नदी से और भाग के अपने बाप के पास गए और बाप के पास जाकर रुक गए और वहीं से अपनी बीवी को आवाज देना शुरू कर दिया, बीवी बच्चों को लेकर बाप से बाहर आ जा। बात खाली कर दे, अरे मेरे सरताज, मेरे शोहर क्या हो गया? कोई परेशानी? बाप में कोई किसी तरह की? फरमाया नहीं, मैंने ये बाप बेच लिया।
जब सुना बेच दिया तो मकान में जो जरूरी सामान था, बच्चों की जरूरियात के जो सामान थे उन्हें समेटने लगी। उसी में उस औरत ने अपने शौहर से कहा, मेरे शौहर, मेरे सरकार, ये तो बता दो कि तुमने ये बात किससे बेच दिया और कितने में बेच दिया। फरमाया, मेरी वफादार बीवी, दीनदार बीवी, मुझसे ये ना पूछ कि मैंने किससे बेच दिया और कितने में बेच दिया। ये सवाल करके किसने बिकवा दिया और किसके बदले बिकवा दिया। हदीस में आता है, जैसे ही ये जुमला पूरा हुआ तो बीवी ने कहा, यही बता दो। तो कहा, सौदा कराने वाले मेरे रसूल है और मेरे रसूल ने मेरे से इतना बड़ा सौदा, इतनी नेमतों का सौदा, इतने फायदे का सौदा करा दिया कि जन्नत का एक पेड़ मुझे मिलेगा। अगर मेरी माएं सुन रही हैं तो मैं अब उनसे ये इल्तिमास जरूर करूंगा, मेरी माओ, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। मेरी माओ, आज तुम्हारी गोदी अबू बकर, उमर, उस्मान से खाली है। आज तुम्हारी गोदों में खालिद बिन वलीद नहीं है। आज तुम्हारी गोदों में मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। क्यों नहीं है? जरा अपनी गोदों की कमियां तलाश करो। मैं तुमसे ये आस करूंगा, इल्तिमास करूंगा, मेरी मां और बहनों, मुझे मालूम है कि तुम मरियम, आसमा, आयशा और खदीजा नहीं बन सकती, लेकिन इतना तो हो सकता है कि तुम आसिया को, मरियम को, खदीजा को पढ़ तो सकती हो। तुमने अपना वक्त नावलों में, डायटों में, फिल्मों में और किन सीरियलों में जाया करना शुरू कर दिया है। ये सास की, ये बहू की, ये ननद की, ये जिठानी की, ये दौरानी की चुगलियों में अपना वक्त सजाया कर दिया। न कुरान की फिक्र, न नमाज की फिक्र, न जिक्र का फिक्र, न तस्बीह की फिक्र। तो मेरी माँ, तुम अगर मरियम, आसिया और खदीजा नहीं बन सकती, अगर तुम अपनी बच्चियों को फातिमा, आयशा, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम नहीं बना सकती, तो कम से कम उनकी जिंदगी का दर्पण तो दिखा सकती है। मैं अपनी माओ से इल्तिमास करूंगा कि औरतें कितना दिल जानती थी। जैसे कहा, जन्नत का एक पेड़ मिलेगा, वो भागी भागी औरत अबू दहदा की बीवी जितना सामान उठाया था मकान में फेंक दिया, अपने बच्चों को और अपने हाथ को खाली हाथ लेकर अपने शौहर के पास आकर खड़ी हो गई। कहा, मेरे शौहर, ये भी जानते हो कि नहीं कि जन्नत का पेड़ कितना बड़ा होगा? करना का मुझसे सुनो, मेरे नबी ने सुनाया और ऐसा लगा कि कान का भी मेरे नबी की आवाज सुन रही है। एक घुड़सवार घोड़े को बैठकर तेजी से भागेगा, 100 साल तक भी चलेगा तो उसी एक पेड़ के साए में चलता रहेगा। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान कहां चली गई? ये किन गलियों में गुम हो गई? ये हराम की तबीयत क्यों हमने खो दी? इस ताल्लुक से अपनी जिंदगी को जरूर समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, जरूर समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी आलस हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की थी, अब उनका मुख्तसर तर्जुमा और मुख्तसर उसकी तशरीह करके बात को खत्म करूंगा। अल्लाह हलाल हराम के ताल्लुक से फरमाता है, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़तुलू औलादकुम मिन इम्लाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह फरमाता है, नबी, लोगों को करीब कर दो, बुलाओ इन्हें बुलाओ, और बुलाने के बाद वो मोटी मोटी बातें, वो जरूरी बातें, वो फराइज की बातें, वो लाजमी बातें, इन्हें बताओ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम कर दिया है। सुनाओ, कुरान फरमाता है, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम,
کر دیا، یہ بھی تمہارے رب نے حرام کر دیا، یہ بھی تمہارے رب نے حرام کر دیا۔ سب سے پہلی چیز بتائی اللہ تشرکوا بہ۔ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ایمانداری سے، معاشرہ اگر سدھارنا ہے تو سب سے بڑی کمزوری سب سے پہلے سدھارنا ہے۔ اللہ فرماتا قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے یہ بھی اگر شرک کر لے تو فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ شرک تیری قسم، میری قسم، رزق کی قسم، کاروبار کی قسم، اس اولاد کی قسم، تیرے سر کی قسم، عام طور پر مسلمان اپنی زبانوں سے استعمال کرا۔ نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کسی نے بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کا استعمال کیا اس نے شرک کر لیا۔ یہ تعویذ گلے کا ہے، یہ ہاتھ کا ہے، یہ پیر کا ہے، یہ باندھنے کا ہے، یہ دبانے کا ہے، یہ پینے کا ہے، یہ بلا ہے، یہ بلا کا ہے۔ نبی فرماتے ہیں تعویذ بھی اور ٹھنڈا بھی دونوں شرک کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی۔ خانے کعبہ میں اپنے حاجی لوگ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ خلاف کعبہ کو خاص طور پر حج کے موقع پر بھی رمضان میں اوپر کر دیتے ہیں۔ حادثہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا، اور حادثہ کیا ہوا کہ ایک آدمی کو پکڑا گیا کہ خلاف کعبہ کا دھاگا کاٹ رہا۔ مسلمان خلاف کعبہ کا دھاگا کاٹ رہا، جب اسے پکڑا، شورتا نے پکڑا، پولیس والے نے پکڑا، تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ بتایا ہے میرے علماء نے کہ خلاف کعبہ کا دھاگا۔ ابھی ایک طالب علم بتا رہے تھے کہ ابی بن سلول کو نبی نے کرتا دے دیا، اپنا معاف لگا دیا، تبھی اسے جنت نہیں مل سکتی۔ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ خلاف کعبہ ہمیں ہماری منزل پار کر دے گا۔ صحن کعبہ سے ایک عورت کو پکڑا گیا، خانے کعبہ کے صحن سے جہاں لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، وہاں ایک عورت پرس میں جو کے دانے اٹھاتی رکھ لیتی ہے، جو کے دانے اٹھاتی رکھ لیتی ہے، جو کے دانے اٹھاتی رکھ لیتی ہے۔ پکڑا، پوچھا گیا تو بتایا کہ ہمیں ہماری آپا نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ اس جو کے دانے کو گیہوں کے دانے میں ملا لو، پیس لو، آٹا بنا لو، گوندھ لو، روٹی بنا لو، جس کے بچے کی اسے کیا بچہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا عقیدہ کہاں ہے، ہماری سوچ کہاں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو، کیا معاشرے کو سدھارنے کے لیے کسی بھی طرح بیٹا میز بدلاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ یہ گانٹ باندھ دو کہ اگر شرک کر لیا جنت کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایمان باللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ ان میں بھی شرک ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ نہیں، یہاں مجوسوں کی بات نہیں، یہاں سکھ اور بدھزم کی بات نہیں، جو اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، عبدالرحمن کہتے ہیں، اللہ فرماتا ان میں بھی شرک۔ سنیے، ایک شاعر کہتا در حضرت پہ ایسا ہی جھکا دے اپنی پیشانی کہ آپ نہیں کئی کعبہ مشکل کشائی ہے، در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے کہ وہ مانگی مراد اس طرح پہ حسائی نے پائی ہے۔ عبادت جانتا ہوں، کیا کہنا شاعر؟ عبادت جانتا ہوں در گئے اخرت کے سردوں کو شفاعت کے لیے، یہ بے بہا دولت کمائی ہے۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بیٹی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، شاعر یہ بھی کہہ دیتا ہے اللہ کے پلے میں، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے کچھ لینا ہے، میں لے لوں گا محمد سے۔ یہ شاعر تو کہہ رہا ہے جو
मुस्तवी खुदा था, जो मुस्तवी अर्श था। माशरा का पहला हिस्सा है मेरे भाइयों, हलाल और हराम की तमीज में पहली शिक है कि अल्लाह फरमाता है कुल तआलू अत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। इसके बाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ, फरमाया तेरा बाप। यहां रसूल ने ये भी एहसास दिला दिया माँ बाप में भी दर्जात हैं, माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ऊपर है। इसीलिए तो नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के पैरों तले है। लेकिन मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरा, मुस्लिम सोसाइटी का हाल आज ये है। राष्ट्रीय सहारा ने 1 दिसंबर के राष्ट्रीय सहारा ने लिखा, रामपुर का सच्चा वाकया लिखा कि एक बूढ़े बाप ने हज का फार्म भर दिया। एक बूढ़े बाप ने हज का फार्म भर दिया और इत्तेफाक से उसकी मंजूरी भी आ गई। जब मंजूरी आ गई तो उसने अपने 7 कमाऊ पूतों को, जवानों को और सरे रोजगार वालों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बच्चों आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, आज मैं बेइंतहा खुश हूं और खुश इसलिए हूं कि मैंने तुम्हारे इजाजत के बगैर, तुम्हें बताए बगैर मैंने हज का फॉर्म भर दिया था, अपना भी और तुम्हारी अम्मा का भी। तुम्हारी अम्मा को भी नहीं बताया, मैंने अंगूठे लगवाए लेकिन उसको भी नहीं बताया कि क्यों लगवा रहा है। मेरी भी मंजूरी आ गई है बच्चों, तुम्हारी माँ की भी मंजूरी आ गई है। और बिठाया इसलिए है कि फला तारीख में पहली किस्त जमा करनी है, इसलिए सातों उस किस्त का बंदोबस्त करो ताकि हम दोनों खुशी खुशी अल्लाह का एक फरीज़ा अदा कर सके। बाप तो समझता था कि औलाद की खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, वो फूलों में ही समाएंगे, लेकिन निकला कुछ और। 7 बच्चों ने बंदस्ता कर दिया कि हमसे 1 रुपए की उम्मीद न रखना, हमारे मशवरे के बगैर तुमने फार्म कैसे भर दिया। सन्नाटे में आ गया था, खुशियां उसकी जमीन के नीचे दबकर रह गई, मां की खुशियां उसके पैरों तले दबकर रह गई। लेकिन बात घर से बाहर निकल गई, पड़ोस ने सुनी, रिश्तेदारों ने सुनी, अपनों ने सुनी, पराए लोगों ने सुनी, जो खास रिश्तेदार थे वो आ गए और उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई बात है, तुम्हारे पास 82 बीघे जमीन है, तुम्हें किसी औलाद से मांगने की जरूरत नहीं है, देने को तो हम भी तैयार थे, लेकिन ताने दे दिया औलाद, तुम 1 बीघे जमीन बेच दो और दोनों हज करके आओ। आपने 2-3 दिन में सौदा कर दिया, 1 बीघे जमीन बेच दी, 82 में 81 बीघे रह गई। अखबार लिखता है जैसे बच्चों को पता चला, बाप की खोज की गई तो पता चला अभी आए हैं और अभी मस्जिद में गए थे। मगरिब की नमाज पढ़ने हुआ गया और नमाज पढ़ के जैसी सीढ़ियों से उतर रहा था, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी उतरा था कि सीने में मिले बच्चे ने 1, 2, 3 गोलियां बाप के सीने में उतार के कहा 1 बीघे बेच दी कि 80 बीघे न बेच सके, इसलिए तेरा ये हासिल कर दिया है। ये मुस्लिम औलाद अपने माँ बाप के साथ करे। अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन को उम्मत न करो, वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वाक़फ़िज़ लहुमा जनाह अस्सुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान फरमाता है अपने माँ बाप को डांटना, छिड़कना, बदकलामी करना, बदतहज़ीबी करना, उनके सामने चिल्लाना, जोर से बोलना, ये सब अल्लाह ने हराम करा है। बात करो तो बहुत नरम, बहुत नरम, बहुत
तफसील में एक माना तो झुकाने का ये है कि जो कुछ तुम कमाते हो वो सब माँ बाप के सामने निछावर कर दो। ये न कहो कि हमारा है, हमने कमाया है, हमारी दौलत है, बल्कि वो उनके कदमों में डाल दो। और दूसरा माना ये है कि ये हाथ, ये ताकत, ये कुव्वत कभी माँ बाप के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? मेरे भाइयों, हम मस्जिदों में हैं, नमाज में हैं, जिक्र में हैं, रोज़ों में हैं, तहज्जुद में हैं, एतकाफ में हैं, नेकियों में हैं। क्या हमने कभी ये पूछने की गवारा किया अपने बच्चों से, मासूम बच्चों से, कि जब घर से निकल कर आते हो तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ को फ्रीज खोलने की भी इजाजत नहीं मिलती। वो खाने जो सजे हैं, वो फल जो सजे हैं, जो मशरूब लगे हैं, वो उस माँ के लिए नहीं है। वो माँ तो टूटी चारपाई पर है, वो माँ तो सिसकियां ले रही है, वो माँ तो आंखें ले रही है, वो माँ तो सही माना में ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए उसके पास बिस्तर भी नहीं है। तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपने औलाद को माश के डर से, तंगी के डर से, पाका कशी के डर से, मुफ्लिसी के डर से, ये तो भूखों मर जाएंगे, औलाद का कदर न करो। ऐसा तो अब नहीं कर रहे हो। हाँ, लड़की अगर है, लड़की नहीं आनी चाहिए, ये तो है मुसलमानों। ये कि भूखों मर जाएंगे, ये तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, लड़की, ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जा रहा है? ये जांच क्यों कराई जा रही है? ये जायज क्यों कराया जा रहा है? खतरा है आगे का माल चला जाएगा जहेज के नाम का। जहेज मेरे भाई इस्लाम की देन नहीं, इस्लाम की देन नहीं है, ये इस्लामी सोच नहीं है। शादी निकाह बिया के ताल्लुक से तो इस्लाम की निहायत पाकीज़ा सोच दी है, निहायत पाकीज़ा सोच, बड़ी सादगी है इस्लाम में। ये तो हमने अपना निजाम मुश्किल कर लिया जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, जहेज इस्लाम में लानत है, इस्लाम में लानत है। और इसके लिए मैं एक मशहूर वाक़या हमेशा सुनाता हूँ, आपको सुना। मीर तकी मीर का नाम आपने सुना है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था। इस वक्त शायद अल्लाह ने सिर्फ एक बच्ची दी, इसे पढ़ाया, लिखाया, नेक बनाया, उम्र खानादारी से लैस किया, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, रिश्तों पर रिश्ते आने लगे। मीर तकी मीर मशहूर शायर है, बर्रे सगीर का बड़ा शायर है, रिश्तों पर रिश्ते आने लगे। लेकिन जितनी तेजी से रिश्ता आता, उससे ज्यादा तेजी से रिश्ता रुखसत हो जाता। क्यों? शायर तो मशहूर था, लेकिन गरीब था, मुफलिस था, देने के लिए दहेज इसके पास नहीं था। रिश्ते आने बंद हो गए। मीर तकी मीर परेशान हो गया, इसने अपने दोस्तों को बिठाया, दे दिया। और मशवरा ये था कि तेरी कुल कायनात तू है और तेरी अपनी बेटी है। ये जो घर है इसे गिरवी रखते, उससे दहेज का सामान तैयार कर ले और अपनी बच्ची को रुखसत कर दे। तू तो यहाँ वहां अपनी जिंदगी गुजार ही लेगा। मीर तकी मीर को यह मशवरा पसंद आ गया। एक बनिए के गया, अपना घर गिरवी रख दिया, माल उससे ले लिया, दहेज का सामान तैयार किया, रिश्ता तलाश किया और निकाह करा दिया। मीर तकी मीर का सपना पूरा हो गया। मीर तकी मीर की बच्ची निकाह के बंधन में बंध गई और उसकी रुखसती का वक्त करीब आ गया। बच्ची की रुखसती हो रही है, अपने घर से पैर निकाल रही है, सहेलियां मिल कर रो रही है। एक सहेली ने चलते चलते कान में कह दिया, तू आबाद हो गई, तू आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया।
اب बाप बर्बाद हो गया, मुझसे मोहब्बतें करने वाला, मेरे बगैर जिंदा रहने वाला, न रहने वाला बाप कैसे बर्बाद हो जाएगा। बच्ची ने कहा रात में मैं सोई नहीं थी, अब्बा रात में आए और आकर अब्बा ने कहा मेरी अम्मी से, वो समझते थे कि मैं सो रही हूं कि कल मीर तक मीर शादी कर देगा, बच्ची तो चली जाएगी लेकिन वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा दोस्त बर्बाद हो जाएगा। अम्मी ने पूछा तो बताया कि घर गिरवी रख के सारा दहेज तैयार किया। कहा सहेली तू चली जाएगी, तेरा बाप बर्बाद हो जाएगा। ये सुना, सदमा बर्दाश्त न कर सकी, लेकिन बाप की इज्जत बड़ी थी। घर से पैर निकाल दिया, रुखसती हो गई, उस घर मुंतकिल हो गई, लेकिन सदमा दिल में इतना गहरा हो गया। सोचते सोचते तारीख लिखती है कि सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसी पहली रात में मर गई। मीर की बच्ची इंतकाल कर गई। मीर तकी मीर को बुलाया गया। मीर तकी मीर आए और देखा कि बच्ची की लाश पड़ी हुई और पूरे को चादर ढकी है, सिर्फ चेहरे से चादर हटाई। और मीर तकी मीर ने जिंदगी का आखिरी शेर कह दिया। मैं कहता हूं आखिरी शेर नहीं कहा। अगर लालची बूढ़े हैं माँ बाप तो पर, और अगर जवान है तो उनको तमाचा मत दिया। मीर तकी मीर ने चादर हटाई और अपनी निगाहें अपनी बच्ची के चेहरे पर डाल दी और डालने के बाद कहा, चेहरे को देखते हुए मीर तकी मीर आंसू हारा और कह रहा है, अब आया है ख्याल, अब आया है ख्याल, ए आराम जा इस्लाम मुरादी में कफन देना, हम तुझे भूले कस्बा शादी में। मेरे भाइयों, ये भी हलाल और हराम की तमीज हमें एहसास करना पड़ेगा कि कहीं ये माल हमारा है कि नहीं। याद रखिएगा दहेज इस्तेमाल कोई सदका से, कोई खैरात से, कोई फितरा से, कोई प्याज से, कोई सूद से, कोई झूठ से, कोई परेड से तैयार करके सजाता है और अपनी बच्ची के हवाले कर देता। भाइयों, क्योंकि जलसे का एक निजाम होता है, वक्त मेरा खत्म हो गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, हर मुर्दार अल्लाह ने हराम करार दिया है। वद्दमा, हर खून को अल्लाह ने मोमिन के लिए हराम कर दिया है। यहाँ इशारा देकर जरूर कहूंगा, जो लोग इस तरह पेश करते हैं कि कुरान के मुकाबले रसूल की बात काट दी जाएगी, कुरान ने कहीं भी न खून को हराम किया, न कुरान ने कहीं मेरे भाई मुर्दार को हलाल किया। ये जो आप कलेजे खाते हैं, तिल्ली खाते हैं, मुर्दा मछली खाते हैं या टिड्डी खाते हैं, ये रसूल ने हलाल किया। और इस मसले में अगर आपको मसला बता दें कि कुरान ने कहा कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ, नबी ने फरमाया सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, तो किसी कबीर की बात नहीं। फरमाया अल्लाह ने मुर्दार हराम करार दे दिया, अल्लाह ने खून हराम करार दे दिया, खिंजीर का गोश्त हराम करार दे दिया, और हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर चढ़ाई जाए वो हराम है। अल्लाह ने शराब, नशा, नशे में कोई भी चीज, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, मेरे भाइयों शायद मुझसे गलती हो गई कि पहले बहुत सारी मिसालें मैंने आपके सामने रखी और वक्त नहीं देखा, वरना मैं असल नशा क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके मुस्कुराहट क्या है, उसके दस पर्दा कितनी परेशानियां माशरे में पड़ रही हैं, वो आपके सामने रखा। और उसके बाद अल्लाह ने हसद को, बग़्ज़ को, कीना को, तासुब को, तनज़ुरी को, ग़ीबत को, इल्ज़ाम को, इत्तिहाम को, सबको हराम करार दे दिया है। आओ हम यह करें कि हलाल क्या है, हराम क्या है, ये अपने कुरान से सीखेंगे, अपने रसूल से सीखेंगे, अपने सहाबा से सीखेंगे, अपने अइम्मा से सीखेंगे, अपने ताबईन से सीखेंगे। और आखिरी बात आपके हवाले, हलाल और हराम की तमीज करने वालों, आखिरी बात और आखिरी बात हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात। कपड़ा बेचते थे, कपड़े का कारोबार करते थे। एक मजूसी गुलाम था इनके पास, कपड़े की दुकान सजी है,
नमाज का वक्त हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए निकल गए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो देखा एक कपड़ा वो एक कोने में रख कर गए थे, वहां देखा, पूछा मजूसी गुलाम ने, कहा कि एक ग्राहक आया था, उसने वही कपड़ा पसंद किया और खरीद कर ले गया। फरमाया उस कपड़े में साटन थी, वह दाग कपड़ा था, क्या तुमने बताया? का ना मुझे पता था, ना मैंने उसे बताया। तो कहा वो रकम निकालो गल्ला से। वो गल्ला से रकम निकाली गई। तारीख के हवाला आपको तारीख लिखती है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, लेकिन भागे से बचा वो दीनार जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दोबारा वो तो रिटर्न नहीं आया था कि उसको वापस कर सकें। ये हलाल और हराम की तमीज थी अस्लाफ में, कहीं खो गई है, किसी गली में गुम हो गई है। मेरे भाइयों और बात थी, लेकिन अधूरी बात आपके हवाले छोड़कर इंशाअल्लाह कभी मुकम्मल होगी। अल्लाह से दुआ है कि हलाल और हराम की तमीज सिखा दे, हलाल और हराम का सही सलीका जिंदगी में उतार दे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जो एक नुक्ता हलाल और हराम की तमीज के ताल्लुक से बयान किया है, वो सब सीखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, उसकी तमीज करो। क्योंकि नबी फरमाते हैं कि अगर हमारे अंदर हराम की ग़िज़ा है तो आज तक क्या हमारे सर के 1 और सवा बालिश ऊपर भी हमारी न नमाज जाएगी, न रोजा जाएगा, न सदका जाएगा, न हज जाएगा, न जिक्र जाएगा, न तस्बीह जाएगी, न सुबह की नमाज, न रात की नमाज, न दिन की नमाज। इसलिए हलाल और हराम की तमीज करो और अपने आप को पवित्र करो, मुकद्दस करो। मैं अपने तमाम भाइयों का, खास तौर पर हजरत मौलाना रज़ाउल्लाह साहब का, उनकी टीम का